हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी की बात अल्पा के साथ। दिस इज योर होस्ट अल्पा शाह, सोशल एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, फाउंडर एम्पावर एजुकेशन and managing trustee Freedom Foundation. I have a very dear friend with me whom I have learned so much from. Well, he is a grassroots level leader, pakka salesperson, and practically must be knowing every stakeholder in this country in mutual fund industry because he is traveling left, right, and center for his job. I know you have guessed it right. Well, he's none other than my very dear friend, Mr. Kailash Kulkarni. Thank you, Alpha. Kailash is CEO at HSBC Mutual Fund. Kailash, how are you? And thank you so much for joining the show. Thank you, Alpha, for making it here and interviewing me. Well, it's been a long time since I know you. I It's know. always a pleasure to interact with you. कैलाश इतने सुपर बिजी रहते हैं क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करते हैं एंड ही पर्सनली फील्स कि सबसे ज्यादा अगर हम सीखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जब ट्रैवल करते हैं. And trust me, I have got him here today after a very long time. मैं बहुत दिन से कतार में खड़ी थी ये इंटरव्यू के लिए. But thank you very much once again for joining the show. कैलाश, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कंसिडरिंग दी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का जो एक स्तर है, जो एक एक्सपेक्टेशंस है रिटेल इन्वेस्टर्स के, या जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जाती है ग्लोबली, क्या आपको लगता है कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा और फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए भी और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए? अल्पा, मैं जितना बुलिश हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, आज नहीं, मैं पिछले आई थिंक 10 years से मैं बहुत बुलिश हूँ. मुझे लगता है कि ये जो एक इंडस्ट्री है, हम पुण्य का काम करते हैं क्योंकि हम लोगों को साक्षर बनाते हैं, फाइनेंशियली savvy बनाते हैं, ट्राई टू एजुकेट द राइट डिसिप्लिन इन पीपल. एंड आप जो बोल रहे हो कि इज देयर अ फ्यूचर टू दिस इंडस्ट्री, बहुत लोग भूल जाते हैं कि अगर सिर्फ पिछले 1 साल का समय देखा हम लोगों ने, तो we have nearly added 1 crore new customers in this industry this year alone, in the last 12 months rolling. तो I'm just saying, ये तो कारवां अभी बढ़ रहा है और लोग जुड़ते जाएंगे. So it's like that I'm very bullish. I think this industry will be good so long as we believe कि भारत will do well for, I mean, as an economy. And if you think that the next 5-10 years is for this country, I think Indians will do well. And it is important to move your money from traditional saving instrument into financial saving instrument. It helps the country also, and people will achieve their goals, ambitions by moving into this industry. So I'm very bullish. Well, Kailash is saying that obviously Amrit Kal, Suvarna Kal will surely help not just mutual fund industry, but as a whole. We are moving into a very strong nation economically. The growth prospects is so high. और मुझे लगता है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस और कंप्लायंस वगैरह जितने भी हमारे देश में जो मेजर्स लिए जाते हैं फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, I think the future is extremely bright. Kailash is one person whom I know since last so many years. He's been completely dedicating his life for women empowerment, women financial literacy, and not just educated or entrepreneurs women. He is also doing lot many activities and he encourages even the lower strata income group women people. उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कैलाश से कि आपको क्या लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट इन फाइनेंशियल लिटरेसी कितना महत्वपूर्ण है, और आप इतना सारा कुछ कर रहे हो, आपको क्या लगता है और क्या करने की ज़रूरत है? तो फर्स्ट एक मिथ है
or rather it's not a myth. Women believe कि financial services should be handled by the brother or the father or the husband. मेरे हिसाब से महिलाएं जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेस्ट होती है, और मैं क्यों बताता हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। ऐसे नॉट बिकॉज एक डायलॉग मांगा है इसीलिए मैं डायलॉग बोल रहा हूँ कि इफ़ यू लुक एट होम मेकर्स and you give them 50,000 rupees to manage a house or 25,000 rupees to manage a house, वो पूरा महीना चला लेती है और start to end the family gets food on the table, there is provision in the house, कभी कोई भूखा नहीं जाता है और वो पैसे टिके रहते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यही चीज़ अगर किसी आदमी को दी जाती तो 3rd वीक में ही सब पैसे खत्म हो जाते हैं, एंड इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। तो women intrinsically know financial planning. They know how to use the money for lasting the entire period of time. So they understand the value of time, they understand the value of money, they understand what is to be done, how the house is to be managed. What is it? This is nothing but financial planning. हाँ, उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर महिलाओं ने अगर ये सोच के किया कि मैं घर संभाल सकती हूँ, तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है। तो दैट इज़ वाई आई बिलीव दे आर द बेस्ट पीपल टू गो एंड टॉक टू, एजुकेट टू। और हम काफ़ी बार लोगों से बात करते हैं, जब हम मेन फोक्स से बात करते हैं कि वो आते हैं हमारे पास, बोलते हैं क्या करना चाहिए, बोला व्हाई डोंट यू गेट योर स्पाउस और योर मदर और योर सिस्टर एंड कम एंड टॉक टू अस। तो बहुत साल पहले हमने एक कैंपेन चलाया था, डोंट जस्ट साइन हियर, और वो कैंपेन ऐसा ही था, मदर सन, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, और व्हाई पीपल शुड नॉट साइन विदाउट स्टडिंग, रिसर्चिंग। और मेरे हिसाब से वो इंटरप्ले था, क्योंकि वी ट्रूली बिलीव वुमेन कैन बी सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। वाओ, मुझे अभी भी याद है कुछ 1-2 साल पहले कैलाश ने मुझे सामने से फ़ोन करके बोला था कि आई वांट टू डू द होलिस्टिक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर माय ड्राइवर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ड्राइवर की पूरी जवाबदारी मेरी है और आई रियली वांट हिम टू बी कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री एट वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। तो इतनी बड़ी सोच के साथ आई एम श्योर if he's leading this wonderful organization, I must tell you one thing here कि HSBC म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम्स करती है, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए करती है, बहुत उनकी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी रही है। एंड ही इज़ वन मैन हु रियली बिलीव्स कि फाइनेंशियल लिटरेसी आप एडुकेट करके अगर क्लाइंट्स को समझा के कुछ करेंगे तो वो बहुत सस्टेनेबल होता है। एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम। तो इसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि हमने कुछ साल पहले ग्रेप फार्मर्स के साथ और ये सब ग्रेप फार्मर जो है वो वुमेन थे, अच्छा, और उनके साथ एक प्रोग्राम किया था, और पर्सनली मराठी में था तो मैं गया था। एंड व्हाट सरप्राइज मी इज, मुझे लगा था कि उनको क्या मालूम होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, हाँ, पर उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सब कुछ जानकारी थी, कितने सस्ते मिलते हैं, क्यों लेना चाहिए। कुछ उसमें से महिला ऐसे थी जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रही थी, एंड वो जो सवाल कर रहे थे, इट ओपन्ड माय आईज कि अभी जेन्युइनली पेनिट्रेशन टियर 3 टियर 4 टाउन्स में पहुंच चुका है फाइनेंशियल प्लानिंग। और जो महिलाएं हैं वो हमेशा खुद के लिए नहीं सोचते हैं, वो अपने परिवार के लिए सोचती है, अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो दैट वाज अ बिग ओपनिंग फॉर मी। और मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि शायद मेरा नॉलेज ऑन दिस गवर्नमेंट स्कीम्स वाज वेरी लो, तो मैंने वो सीखा उसके बाद, उस प्रोग्राम के बाद, कि क्या अवेलेबल है, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके और अलग अलग प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। सिप है फायदे वाली आदत, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो HSBC म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा टैगलाइन है, और वो एक्सटेंसिवली इस थीम पे काम करते हैं। मुझे पता है कि टॉप अप के लिए भी वो लोग बहुत अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। कैलाश, आपका क्या व्यू है, इज म्यूचुअल फंड ओनली सिप? क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ सिप के मेथड से ही क्लाइंट को एक्वायर करना चाहिए? आपको क्या लगता है? सिप एक तरीका है, बट एक डोर ओपनर है मेरे हिसाब से,
क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे निवेशक को जानता हूँ, बोलते हैं नहीं नहीं मैं म्यूचुअल फंड नहीं करता हूँ, मैं सिप करता हूँ। फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि सिप एक्चुअली म्यूचुअल फंड में किया जाता है। बट सिप एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे डोर खुलता है और उसके बाद आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स उसी निवेशक को दिलवा सकते हो। बट सिप बहुत पावरफुल है और सिप फायदे वाली आदत, जो हमारा हैशटैग फायदे वाली आदत जो हमने कॉइन किया था, we are very proud. We have won more than 20 different awards for this campaign. So it has really been fantastic. माने recognition मिला है, इंडस्ट्री से मिला है, इन्वेस्टर्स से मिला है, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिला है। काफ़ी लोगों ने हमें ये बोला कैन वी do co-branding of this and send it to our investors because it is very nice. So that felt good. अच्छा, वाओ। सिप है फायदे वाली आदत, ये बहुत ही अच्छी टैगलाइन ही नहीं है पर बहुत बड़ी सीख है। कैलाश, व्हाट डू यू थिंक कि जो यूथ है हमारे देश की, जो फ्यूचर है, कौन सी ऐसी 3-4 चीजें हैं जो उनको अपने लिए अपग्रेड करना बहुत जरूरी है एज फार एज देयर फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ खर्चे वाली यूथ है या आपको लगता है कि बहुत सेंसिबली आगे बढ़ेगी? व्हाट इज योर व्यू? So here I have a very different view as compared to most of the traditional people in financial planning. I believe that the younger generation, unlike us, first we had to ensure basic livelihood. Yeah. This younger generation is blessed कि their parents have taken care of the basic घर, दाल चावल घर उन्होंने संभाल रखा है। तो they have aspiration, they like to travel, they like to enjoy life, they like to party. तो वो बंद नहीं करना चाहिए। Okay, so you should enjoy life, but at the same time, a little bit, you should start saving at an early age. काश मुझे बताने वाला ऐसा कोई होता जब मैं 20 साल का था या 22 साल का था कि आपने आज से SIP चालू करना चाहिए या कोई कुछ सेविंग चालू करना चाहिए। मैंने तो काफ़ी लेट चालू किया। तो मेरे हिसाब से एक छोटा चेंज करना चाहिए। While enjoying life, also start focusing on investments at an early age. I think that will ensure that you live a very, very happy life when you grow 40 plus. कितने सरलता से कैलाश हमें बहुत बड़े बड़े लेसन्स जो है वो सिखा रहे हैं। आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू लिसन टू हिम एंड डू व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच अस। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने हम सबके लिए इतना कुछ किया है कि रियली आई हैव सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड, स्पेशली फॉर SIP। और ये सही में बहुत अच्छा कैंपेन है। आप लोग प्लीज़ हैशटैग SIP है फायदे वाली आदत को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं पे भी अक्रॉस कंट्री आप पूछिए कैलाश के बारे में, वो ज़रूर जानते हैं और बहुत अच्छा ओपिनियन होता है उनके लिए, क्योंकि कैलाश ने उन सबसे इतना इंटरेक्शन किया हुआ है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर पूछूंगी कि भाई आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी 2-3 चीजें तो आप प्लीज उनको बताइए। डू यू थिंक दैट क्वाइट ऑफ यू आर इन कंफर्ट जोन या कुछ और हटके करना चाहिए उन्हें? प्लीज आप फ्रैंकली उनको गाइड करिए ताकि वो बहुत आगे बढ़े। फर्स्टली थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मुझे नहीं पता था कि मैं पॉपुलर हूँ, पर हाँ, मैं क्योंकि 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था और फिर मैं इस साइड आया टेबल के। तो उस टाइम पे हम लोग एज फ्रेंड्स मिलते थे, एज पार्टनर्स मिलते थे, काफ़ी गपशप होती रहती थी। और मुझे क्योंकि ट्रैवल का बहुत शौक है तो मैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सब जगह जाता हूँ। तो यू मीट पीपल एंड आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पोटेंशियल इतना ज़्यादा है इस मार्केट में फॉर द बिजनेस दैट वी आर इन, दैट अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये सोच रहा है कि मेरा बहुत बड़ा कॉर्पस बन गया है और मैं खुश हूँ, तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप गलत काम कर रहे हो, बट इतना ध्यान रखिएगा कि इससे तिगुना हो सकता है, चौगुना हो सकता है। तो डोंट स्टॉप, दैट इज नंबर 1। सेकेंड, मैं हर डिस्ट्रीब्यूटर को कहता हूँ कि इफ़ यू हैव चिल्ड्रन प्लीज गेट देम इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि आपने फाउंडेशन बना के रेडी रखा है। आपके बच्चों को सिर्फ उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है। तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं,
you know, they are there to save lives. We are there to help people in their lives as an industry. तो दिस अ वेरी नोबल प्रोफेशन, मैं उस तरीके से देखता हूँ. और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि what is the opportunity? The number of clients are growing far in excess of the number of distributors who can service them. So we need more distributors also who can talk to clients, who can give the right kind of advice to the clients and help them in their financial planning. तो ये बहुत ही क्रिटिकल है. तो मेरे हिसाब से आपको इसमें लगा रहना चाहिए, आप ग्रो कर सकते हो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोविड ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई हमको, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. पहले हम सब पेन और पेपर के साथ काम करते थे. कोविड ने सिखाया कि टेक्नोलॉजी यूज़ करो. अभी कोविड ख़त्म हो गया, अभी वो आदतें जो गलत थी पेन पेपर की, वो वापस नहीं लानी चाहिए. वी शुड कम्प्लीटली गो ऑन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये होता है कि द ऑपरेशनल टाइम दैट यू हैव बिकम्स लेस. तो आपको क्लाइंट फेसिंग का टाइम ज़्यादा मिलता है. और मेरे हिसाब से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक पर्टिकुलर साइज़ के बाद 100 फैमिलीज मैनेज करने के बाद आप एक दो लोगों को अच्छा हायर कर सकते हो जो बैक ऑफिस संभाल सके. एंड मोर टाइम यू फ्री योरसेल्फ टू मीट मोर क्लाइंट्स, यू आर एबल टू गेट मोर बिजनेस. तो मेरा एक ही कहना है लोगों से कि डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है. और ये एक इंडस्ट्री ने देखा है पिछले 10 सालों में इतने रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, और हर टाइम एक बड़ा रेगुलेटरी चेंज आता है, हम बोलते हैं ओहो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी. पर ये इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 60, अभी 70 लाख करोड़ होने आई है, और जल्दी 100 हो जाएगी. तो मेरे हिसाब से ये जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, व्हाट हैव दे डन, दे हैव मेड आवर इंडस्ट्री मोर ट्रांसपेरेंट. और जब क्लाइंट निवेश करता है वो देखता है अरे इधर तो कुछ फंसा नहीं सकते हैं. इट्स वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, इट्स वेरी गुड फॉर मी, द प्रोडक्ट इज गुड फॉर मी. और जब प्रोडक्ट तुम्हारे लिए अच्छा है तो पीपल विल कम टू यू. So that is that. Stay in this business and get your second generation into this business. आई एम श्योर कि कैलाश ने सेकेंड जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए ये बिजनेस में आई थिंक HSBC म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली ये एफर्ट्स कर रही है और काफी सारे हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इनहेरिट द मेरिट, जिसमें काफी करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के बच्चे लोगों ने उसके ट्रेनिंग ली थी एंड द फीडबैक हैज बीन वेरी गुड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू दिस प्रोग्राम. और भेजते रहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि HSBC म्यूचुअल फंड जो है एज अ होल अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर कैलाश कुलकर्णी हर सारी चीज वो कर रही है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा हो, चाहे वो वुमेन हो, यूथ हो, SIP हो, नेक्स्ट जनरेशन हो, इवन लोअर स्ट्राटा इनकम ग्रुप के लोग हो. सो ओवरऑल बहुत बड़ा योगदान है और हम इनका सही मायने में रिस्पेक्ट भी करते हैं. कैलाश, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी हमने आपके पास कोई भी ऐसी प्रपोजल हो या प्रोजेक्ट हो जिसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, लर्निंग हो या वर्कशॉप्स हो, यू आर द फर्स्ट वन टू एनकरेज अस. इनफैक्ट जब हमने एम्पावर एजुकेशन ने गो बियॉन्ड टू ग्रो बियॉन्ड लॉन्च किया था तो बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एनकरेज किया था. Which are those few things जो आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 years में उनको अपग्रेड करके, मीन्स देयर इज नो सेकंड थॉट कि भाई उनको ये सीखना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है? टेक्नोलॉजी स्किल्स, ओके, डेटा एनालिटिक्स, ये एक बहुत बड़ी चीज है. आप अगर देखो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, कहीं चाहे वो बड़े शहर का हो या छोटे शहर का, नॉर्थ का हो या साउथ का हो, एट सम पॉइंट इन टाइम क्लाइंट्स उनके पास आए हुए थे और क्लाइंट चले गए, वापस आए नहीं वो क्लाइंट. ऐसे नहीं कि वो क्लाइंट चला गया क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब था. क्लाइंट्स में गॉन विद हैप्पी एक्सपीरियंस, बट हम उसके ऊपर कुछ स्टडी ही नहीं करते हैं डेटा एनालिटिक्स. एंड यू कैनॉट डू इट ऑन एन एक्सेल शीट, यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी. तो कुछ तो सीखना पड़ेगा, स्किल सेट आपको. फिर सोशल मीडिया स्किल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है.
क्योंकि आपको खुद का ब्रांड प्रमोट करना है। दूसरी चीज़ है कि नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं। मेरा एक कहना है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है। एडवाइस तो आदमी ही दे सकता है आज के दिन में, एंड द डिस्ट्रीब्यूटर प्लेज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर एक सस्टेन्ड फॉल आया मार्केट में, 3-4 साल रिटर्न्स नहीं बने, खुदा ना खास्ता, that is the time people will realize the importance of a distributor. Because मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लैपटॉप के ऊपर सर रख के रो नहीं सकते हो, आपको कंधा लगता है जी, ठीक है, एंड दैट कंधा कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर. So not every time markets will continue to go up, there will be time markets will fall. So it is at those times when everything is good, nobody requires anybody's help. It is when times are tough, and hence keeping your knowledge updated about funds, about fund managers, about philosophy of the fund houses, नए fund houses आएंगे, उनके साथ काम क्यों करना चाहिए. I think this is all very, very important. क्या बात है. मीन्स कैलाश इज वेरी वेरी मच इंसिस्टिंग ऑन टेक्नोलॉजी, डेटा एंड सोशल मीडिया. बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट जो हम आज ये इंटरव्यू ले रहे हैं वो हम क्यों ले रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी व्यूज सुने और आप सीखिए. ये सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है जो हम ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा पा रहे हैं ना. तो बहुत अच्छी एडवाइस दी है एंड आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू डेफिनेटली लिसन टू दिस. मैं कैलाश से ये भी पूछना चाहूँगी कि भाई आप HSBC म्यूचुअल फंड के बारे में हमें कुछ बताइए कि भाई आगे आपके प्लान्स क्या है और इन्वेस्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप बताइए. वैसे प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स तो बहुत फर्स्ट क्लास है और कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, बट प्रोडक्ट साइड पे अगर आप हमें कुछ थोड़ा सा आपका विजन, आपका फ्यूचर प्लान्स बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा. So HSBC ग्रुप के बारे में थोड़ा बात करूं तो HSBC ग्रुप is extremely bullish about Asia as a market, and within Asia, India as a country. They are very bullish. So across banking, across all kinds of financial products जहाँ पे हम हैं, they are very bullish. We are growing aggressively. We have some of the best products in banking and mutual funds आज के दिन में. We also have very, very good global products. और ये ग्लोबल प्रोडक्ट जैसे जैसे इंडिया खुलते रहेगा, वील बी एबल टू ऑफर देम टू इंडियन सिटीजन्स. आज हमारे पास पूरा प्रोडक्ट स्वीट है, फिक्स्ड इनकम में, हाइब्रिड में, इक्विटी में पूरा प्रोडक्ट स्वीट है. हमारे पास आज के दिन में 2 PMS प्रोडक्ट्स भी हैं, बट दोज PMS प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली सोल्ड टुडे बाय द बैंक. बट by mid 2025 we will open this to other distributors also. डोमेस्टिक AIF लॉन्च कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि गिफ्ट सिटी में भी हम एक ऑफिस खोलें, नॉट जस्ट फॉर इनवर्ड फ्लो बट ऑल्सो फॉर आउटबाउंड फ्लो. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ कि हाउ HSBC ग्रुप इज फोकस्ड ऑन इंडिया. तो हमारे पास कुछ इंडिया डेडिकेटेड फंड्स हैं विच आर लक्समबर्ग बेस्ड फंड्स. हम लोग एडवाइस करते हैं यहाँ से, ठीक है. These funds were nearly $2 billion, you can say, in advisory assets 2 साल पहले. आज के दिन में तिगुना हो गए. Okay, because that is the amount of global investors who are believing in India and wanting to invest in India, not just equity but fixed income also. एक और जो मेन चीज़ है कि lot of investors believe mutual fund is equity. ऐसा नहीं है. म्यूचुअल फंड इज इक्विटी, म्यूचुअल फंड इज फिक्स्ड इनकम, म्यूचुअल फंड इज लिक्विड फंड्स. तीनों आते हैं इसमें. तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आपका टाइम फ्रेम है, होराइजन है, रिस्क एपेटाइट है, आप अलग अलग टाइप के चीज़ें ले सकते हो. एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स, इंक्रीजिंग द ग्लोबल प्रेजेंस, increasing domestic presence, adding new product lines, launching new products. अभी हमने first of its kind export opportunities fund किया है, पिछले ही महीने बंद किया था लास्ट डे पे. I think that's a unique strategy that we have and we'll continue to innovate. Wow, क्या बात है. गिफ्ट सिटी, PMS, AIF, कितनी सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है फ्यूचर में
और एक अच्छी बात और कैलाश ने हमें बताई है कि आप एसेट एलोकेशन पे जोर दे दीजिए, सिर्फ इक्विटी पे आप हमेशा रिकमेंडेशन ना दे तो बेटर है। एम आई राइट कैलाश? यस, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं जी, वो उसमें ज्यादा फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, बराबर। बिकॉज इन 1 ईयर द मार्केट कैन गो डाउन, तो यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो इसीलिए इक्विटी डेट, और आजकल तो इक्विटी डेट और गोल्ड कॉम्बिनेशन Multi-asset मल्टी एसेट fund. प्रोडक्ट्स It's काफी doing हो गए so हैं, well. सो दे आर डूइंग वेरी वेल। जी, जी, तो और इन्वेस्टर्स के फेवरेट एसेट बिल्कुल। क्लासेस में है वो। बिल्कुल। वेरी नाइस। कैलाश, एक क्लोजिंग नोट आपकी ओर से हो जाए फॉर एवरीवन, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर एंटरप्रेन्योर्स, women entrepreneurs like me, and for distributors and everyone. कैलाश, आप क्या कहना चाहोगे? it's never too late to start investing if you haven't invested. क्या बात। That is number one. Although हम लोग बोलते हैं start investing early, start investing early. आप समझ लो you meet a 50-year-old person, वो बोला सर मेरा तो टाइम निकल गया है। यहाँ पे जब भी तुम ट्रेन पकड़ोगे आप आगे ही बढ़ोगे। That is the most important thing. So start investing if you haven't started invest. और जब मैं investing बोल रहा हूँ मैं financial products की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर आप कर सकते हो, और ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, एनएवी ट्रैक करना बंद कर दो, क्योंकि एनएवी ऊपर जाएगी, एनएवी नीचे जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। तो दैट इज नॉट व्हाट इट। इफ यू हैव साइंड अप फॉर 10 years, ट्राई एंड अवॉइड एवरी वीक monitoring the product, once in 6 months just to take a health check, जैसे बोलते हैं, हेल्थ चेक करो पोर्टफोलियो का, उससे ज़्यादा मत करो। ये मेरे हिसाब से 2 चीज़ें सभी लोगों ने करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने क्लाइंट्स को समझाना चाहिए, क्लाइंट्स को खुद से समझना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाओ। सो प्लीज 2 चीज जो कैलाश हमें समझा रहे हैं हमेशा याद रखिए। फर्स्ट थिंग इज कि इट्स नेवर टू लेट। आज अभी इसी वक्त भी आप कर सकते हो अगर आपने अपना निवेश शुरू नहीं किया है तो। और दूसरी चीज जो उन्होंने बताई कि प्लीज डोंट ट्रैक द एनएवी एवरी डे, पॉसिबल ही नहीं है ये, आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस में डाल दोगे। सो प्लीज लीव एवरीथिंग टू एक्सपर्ट्स, विच इज म्यूचुअल फंड हाउसेस, फंड मैनेजर्स, दे नो 1000 टाइम बेटर देन ऑल ऑफ अस। आई थिंक हमने उन्हें इसीलिए हमारा पैसा मैनेज करने दिया है क्योंकि वो बहुत बेहतर वे से ये सारी चीजें करते हैं। हमें इसमें हर रोज कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ना कैलाश? बिल्कुल। थैंक यू सो मच कैलाश, आज आपने हमें टाइम दिया। आई नो यू आर सुपर बिजी, पर फिर भी यू आर ऑलवेज हम्बल एंड अप्रोचेबल। It's always a pleasure to talk to you, Alpa. I know the hard work and amount of work you do for Thank the you. society and Thank helping you so them. much. I know I've been traveling a lot, but always a pleasure to talk to you. Thank you so much for joining the show. Thank you. Hope you have liked this knowledge on investing. Please like us, share this video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel.